Hi guys, welcome back to my channel. My name is Prince and as you know, I live in Shanghai and I make videos regarding Shanghai city. So today I'm coming again with one more new video. So let's see the Shanghai streets with me. So good evening guys. I'm here near Liva Villa. This place is in Minhang district. It's a very high-end apartment here in Shanghai main city. Like Shanghai is really a very big city, like it is 10 times bigger than Jakarta and maybe 3 times bigger than New Delhi, basically Delhi, Noida and all the NCR region. So कहने का मतलब ये है कि Shanghai city area wise it is really big city, and the city has been divided into two parts, east and west. West is Pudong and west is Puxi and east is Pudong. So I live in Puxi, and can you see the greenery here in Puxi? Oh my god, do you see this kind of greenery in any such a global city? And Shanghai is like, you know, it is a very global city, very global, and all these multinational companies are here, so much of expat population. And like earlier the position what was New York, so Shanghai has already taken the place of New York. Now New York does not stand in front of Shanghai. Shanghai is that good city. I'm not bragging about it, but since I'm living here from the last 4 years, so I'm telling you as per my experience, it is one of the safest city of the world and very convenient but expensive. Shanghai is an expensive city, but it's good. It is very amazing to live here in Shanghai. So yeah, what do you guys want to know about the city? You can put it in the comment section if you want to know anything specifically about Shanghai. So right now I will show you just the nearby area because I came here for my daughter's swimming class. So my daughter is swimming. I thought I will walk meanwhile, and जब मैं walk करूँगी तो मैं आप लोगों को भी city थोड़ा सा दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा एक idea लग जाता है. Even though this is not the main city, the main city will be like from here where I'm right now. If you go to the Bund main city, it will take like 45 minutes to go by car, and even in train also, because subway is so good here. Wherever you want to reach, you will reach in like only in 45 like 45 minutes. It will not take more time. So I thought, okay, let me walk here today and show you guys the city, the nearby city area. This place is called Minhang and quite amazing. In this area all the nice villas are here, very expensive villas. And can you see the greenery? Right now it is evening 4 o'clock and you see the 4 o'clock is looking like 6 o'clock. Can you see in the 4 oh, this is the Stratford. So there are many Indians who live in this apartment actually nearby here. I also went one time here. Can you see here the river? This river is not really developed, like totally very canal like raw river. Usually they make it very aesthetic and they make some river fronts in that river area, but this is like very raw. Ah, nice. Can you see here? Just to click some nice pictures here. Looking really nice. If somebody is fond of clicking pictures, they can come and click here.
So guys, I have just read the news about this टाटा कन्वर्जन सेंटर लाइक TCS में जो ये लव जिहाद का केस चल रहा है. गाइज व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक कि हो क्या रहा है हमारे देश में. हर जगह हिंदू लोगों की लड़कियों को क्यों ये लव जिहाद के चक्कर में लाइक मुस्लिम लड़के फंसाते हैं लड़कियों को, यंग लड़कियों को हु आर नॉट इवन adult yet, not even 18 years. Oh my god guys, look here, they're doing fishing. What a fun guys to do fishing, right? Quite amazing. हाँ, तो ये लव जिहाद में क्या होता है, ये मुस्लिम लड़के यंग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट कर देते हैं, कुछ उन्हें कन्वर्ट करा के शादी भी कर लेते हैं. फिर शादी करने के बाद उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, कुछ वो बच्चे भी पैदा करते हैं. बेसिकली मतलब ये लोग मुस्लिम लोग क्या चाहते हैं कि सारे हिंदू लोग ख़त्म हो जाएं इंडिया से और इंडिया एक हिंदू कंट्री की बजाय एक मुस्लिम कंट्री बन जाए. दे वांट टू delete all the population of Hindu people. They just want all the Muslim people should live in India. ऐसा ही लगता है. मतलब लोगों का ये रवैया देख के इंडिया में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, मतलब बहुत बुरा. एक कॉरपोरेट ऑफिस में गाइस जो हेड है, एक कॉरपोरेट ऑफिस में गाइस TCS की जो HR हेड है, व्हाट वाज हर नेम, निदा खान. तो वो ऐसे उसने मुस्लिम लोगों की टीम बना रखी है कि यंग लड़कियों को आप फंसाओ, मतलब उस तरह से कि हाँ उन लोगों को नीचा दिखाओ, हिंदू लोगों को उनको फंसाओ, उनको बैडली ट्रीट करो, रेप करो या फिर उनको छेड़ो, न्यूड पिक्चर्स भेजो, उनको ज़बरदस्ती इस तरह से बोलो कि मतलब तुम्हारा धर्म गंदा है और हमारा धर्म अच्छा है. तो इस तरह की जो भी बातें सामने आ रही हैं, हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि कॉरपोरेट में मतलब ये सब चल रहा है कन्वर्जन, कि वो जाकिर नाइक के वीडियोस वो लड़कियों को सेंड कर रहे हैं, लड़कियों को अश्लील पिक्चरें भेज रहे हैं और फिर उनके साथ गंदे गंदे जोक्स शेयर कर रहे हैं. मतलब उनको कुछ फ्रीडम ही नहीं है. और इतना, और फिर उनको ये भी धमकी दे रहे हैं अगर लड़कियों ने कंप्लेन करी तो जॉब से निकाल दिया जाएगा उन लड़कियों को. मतलब चल क्या रहा है इंडिया में, क्या चल रहा है. और हिंदू लोग सेक्युलर बनते फिरते हैं कि हम तो सेक्युलर हैं. अरे सेक्युलर तो तुम बचोगे ही नहीं, सेक्युलर करोगे तो जिंदा ही नहीं रहने देंगे ये लोग आपको. आपकी बच्चियों को उठा के उनको रेप करके उनके साथ ज़बरदस्ती शादी करके उनसे बच्चे पैदा करके और उनको बेच देते हैं इधर उधर. मतलब कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी गाइस. पहले मैं इतना नहीं सोचती थी, मुझे लगता था कि चलो ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि भाई ये लोग रेडिकल्स कितने गंदे होते हैं. और सच बताऊं, एक भी सारे ही मुस्लिम ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी हो. कोई आपका फ्रेंड भी होगा ना और आप सोचोगे कि नहीं मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, वो ठीक है. नो गाइस, ये आपकी गलत फहमी है. सारे मुस्लिम एक जैसे होते हैं, सारे के सारे. उनका भले वो जो जितना थोड़ा अनपढ़ होगा ना, जो पंचर वंचर बनाता होगा, वो फिर भी भले थोड़ा बेटर हो क्योंकि उसको इतना पता नहीं है, वो अपना काम रोटी कमा रहा है. और जो थोड़े वेल ऑफ हो जाते हैं ना, जिनकी सैलरी आती है और जिनको कमाने की दिक्कत नहीं है, वो अपनी पूरी एनर्जी से इसी चीज़ में लगाते हैं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन को कैसे वाइप आउट किया जाए, हाउ टू वाइप आउट ऑल दीज हिंदू पीपल. दिस इज़ द थिंग गाइज. मे बी इट्स अ बिटर ट्रूथ, बट दिस इज ट्रूथ. दिस इज़ द ट्रूथ. Oh my gosh, this place looks so nice. Kingdom Park. I think it's an apartment here. Can you see how fancy these apartments and these places? Very, very hi-fi. Like full of greenery.
and very like even after like if you just have a glimpse itself look very posh. So this is how it is in Shanghai, and this is Minhang district. Shanghai has so many district, like 28 district in Shanghai city. आप गाड़ियाँ देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे. आपको सब मर्सिडीज, BMW और यही सब कार्स दिखेंगी. ऑडी देख लो, ये मर्सिडीज ही खड़ी है. दिस वन इज टेस्ला. गाइस ये चिड़ियों की आवाज़ देख रहे हो, कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है, कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है. Because these all villas and apartments are very expensive. Can you see here? Because these are with nearby all the international schools, so people who live here are really super duper rich. Super duper rich. Can you see the apartment? Oh my god, it's like a resort. Very very amazing. So guys, look at the security. वहाँ जाने से पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एंट्री करने से पहले ही पूछता है कहाँ जा रहे हो, कौन से एरिया में जा रहे हो, एवरीथिंग. दैट हाई सिक्योरिटी. मे बी ये कहीं मुझे भी ना बोल दे कि डू नॉट मेक वीडियो और एनीथिंग. एनीवेज आई एम जस्ट वॉकिंग. मे बी ही मस्ट बी थिंकिंग आई एम लिविंग हियर. कैन यू सी गाइस द ब्यूटी? What a place. So guys, आपका क्या ख्याल है ये इसके बारे में, टाटा कन्वर्जन सेंटर के बारे में? मतलब हिंदू लोग तो छोड़ेंगे, बचेंगे नहीं इंडिया में. आई थिंक ऐसा जिस तरह से चल रहा है हमारे देश का हाल, वी ऑल विल बी डेड. ब्रिटेन इज़ अ टोटली मुस्लिम कंट्री. सिर्फ मुस्लिम्स ही रहते हैं ब्रिटेन में. Even the whole Europe is like Muslim now. This one is Liva Villa. दो गेट्स हैं इस लीवा विला के, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से. जिसको जिधर से जाना है उधर से एंट्री कर ले. गाइस आप लोग भी वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कहाँ रहते हो, किस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हो. हम लोगों का क्या ओपिनियन है कि हम लोगों को किस तरह के घरों में रहना चाहिए, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने अपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से. क्योंकि ऑफ कोर्स पैसों से ही सब होता है, लेकिन फिर भी एक ड्रीम तो होता है ना सबका. एक चॉइस तो होती है कि काश मैं ऐसी जगह पे रहती या मैं वैसी जगह पे रहती. तो क्या आप लोगों की सोच है, आप प्लीज़ बताना मुझे. कितनी नाइस ग्रीनरी है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है. ऐसे मन एकदम प्रसन्न हो जाता है. जब आपको बहुत लो फील हो ना गाइस, व्हेनेवर यू फील लो, तो क्या करो आप लो, जब आपको लो फील हो आप सिर्फ वॉक करने निकल जाओ. सो गाइस आई केम टिल हियर बाय वॉकिंग.
So there is another, also one more gate for the Kingdom Park. This Kingdom Park is, I think, it's really a huge complex, very very big complex. Like 3-4 gates. It has 3-4 gates. Look at this, guys. Very very nice and green. See here also, this is, can you see, Kingdom Park. Quite an amazing place. See यहाँ पे भी खड़ा हुआ है एक सिक्योरिटी गार्ड. हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड ही खड़े रहते हैं. चाइना इतना सेफ है, हर अपार्टमेंट के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते ही हैं 100%. कोई ऐसा अपार्टमेंट होगा जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ना हो. गाइस देखो, घूमते घूमते और भी शाम हो गई. अब मैं सोच रही हूँ मैं वापस जाती हूँ. आई थिंक मेरी बेटी का स्विमिंग क्लास भी फिनिश हो गया होगा. सो आई विल गो एंड पिक अप माई डॉटर. Thank you so much for watching my video. I hope you are liking these small clips videos, the Shanghai city, roads and everything. So if you really like my videos, please like and subscribe to my channel. Thank you so much, guys. Please give a comment also. Thanks a lot.